तो बहुत ही इजी हो गया था इंटरव्यू, आपके इंटरव्यूज देखने के बाद। अगर मैं कहूँ तो मुझे तो पहले इस जॉब के बारे में कुछ पता ही नहीं था, एंड इट वाज लाइक एलियन फॉर मी। मुझे तो कुछ नया लग रहा था, मुझे पता ही नहीं था, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पता नहीं था क्या था, कुछ नहीं मालूम था। तो फर्स्ट इंटरव्यू के टाइम पे इसी के कारण मुझे मतलब रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर इसके बाद मैंने इसके बारे में पढ़ा, सीखा। उसके बाद मैंने यूट्यूब में देखना शुरू करा, तो कैसे आपकी वीडियोस आना शुरू हो गई, तो मैंने उसके बाद एक वीडियोस देखना शुरू करी। तो उसके बाद मुझे पता चला सेम क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, मतलब बाकी स्टूडेंट्स को भी, मगर उनके आंसर देने के तरीके अलग। So hi guys and welcome back to my YouTube channel. Today we have with us new member in this channel, that is Prasanna. Prasanna ने अभी बायजूस का जो स्टूडेंट सक्सेस स्पेशलिस्ट का जॉब रोल होता है उसका इंटरव्यू क्रैक किया है, and today he has joined with us to share all his experience, like what was the interview, how he applied, what were the questions, virtual onboarding कैसे होती है, उसमें क्या होता है. He'll share everything about that. ठीक है? So I would have one request to all of you, that please watch the video till end so that you can learn everything from Prasanna experience. And before I forget, प्लीज थैंक हिम लेटर, बिकॉज उन्होंने अपना टाइम स्पेयर किया है आप लोगों के लिए टू लेट यू नो ऑल द थिंग्स ऑफ द इंटरव्यू. So once you get the help from Prasanna, please thank him later regarding whatever advice he has given in the interview. Okay. So Prasanna, first of all, welcome to my YouTube channel and congratulations. Thank you, sir. For cracking the Byju's interview in very short span of time. So I'm very happy that you have taken the benefit from our videos and you have cleared the interview. And now actually you're having the joining on 30th of this month. So literally happy for you and wish you all the best for your future and career in Byju's. Okay. So Prasanna, today we'll have about your journey, basically that how you applied and what all things happened with you throughout the journey of Byju's. Okay. So first we'll start with the basic intro of yours and then we'll move forward with everything. Okay. Yeah, sure. So it's your time. Sure. Go ahead. Yeah. Okay. Thank you, sir. Yeah. Thank you for inviting me. It will be my pleasure to be on your channel. It's all because of your channel and your videos which helped me to get it through the interview. So to introduce myself, I have to say I am Prasanna. I belong to Chennai, and I have to tell, like, if I have to tell about my experience, professional experience, I have worked as an assistant professor in a college where I completed my master's in English literature, and I did my B.Ed also, which is of Bachelor of Education for Elementary Education. So after that, I have to tell about my hobbies. I read, I write poems, and I love to talk. Yeah. So this is an interview for me. Yeah. Okay. Perfect. Good. So Prasanna, first of all, let our viewers know that how you got the link, how you applied for this job role. Okay. I think this is my second time when I was applying. First time I applied, but I was, I just got rejected. Because I didn't know about the job profile or how to respond or how to talk in the interview and all. It's just because of your YouTube videos which helped me, because उसके पहले कुछ पता ही नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है. So it's just because of your videos कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आने हैं, उस क्वेश्चंस को कैसे हम लोग को रिप्लाई करना है, उसके आंसर्स कैसे होते, कैसे करने चाहिए, ये सब आपकी वीडियो से ही पता चला. सो या तो लिंक्डइन से मुझे मिला ये अप्लाई करने का प्लेटफॉर्म. So from LinkedIn I applied. I think this was my second attempt. I applied and I think I applied on May 16th. Okay. And I got the call by in 4 days. I think May 16 से सिर्फ 4 दिन में मुझे कॉल आ गया था. फर्स्ट राउंड इंटरव्यू हुआ था May 20 को, और उसी दिन सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू हो गया जूम कॉल का. फिर हुआ थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू, वो भी उसी दिन हो गया. आई थिंक आई वाज बिट लकी ऑन दिस पार्ट कि मुझे एक ही दिन में सारे इंटरव्यूज कंप्लीट हो गए थे. एंड देन फॉर द थर्ड पार्ट, उसके बाद मुझे अगले दिन ही बायजूस से मैसेज भी आ गया था, एक्नॉलेजमेंट कि यू आर बीइंग सिलेक्टेड एज बाय स्टूडेंट सक्सेस स्पेशलिस्ट. So yeah, सिर्फ 2 दिन में काम खत्म हो गया था सर. Perfect. Okay. So part by part we'll move. पहले आप हमें बताओ कि फर्स्ट राउंड जो आपका हुआ इंटरव्यू का, उसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? How was it? Sir, it was just a basic question, sir. Basic, जैसे tell about yourself, the same thing. But अभी जैसे इस वीडियो के लिए मैंने इंट्रो दिया था, वो इतना शॉर्ट इंट्रो नहीं था, वो जो लॉन्ग था. It was like very long. Like I was telling about my skills,
लाइक क्या क्या स्किल्स मेरे पास हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, अटेंशन टू डिटेल, ये सारे वर्ड्स आपके वीडियो से लिए हुए थे। फिर पास्ट एक्सपीरियंस को कैसे मैं एक अच्छी तरह से बोल पाऊं कि उनको समझ में आए कि मेरे पास एक कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि मैं बन सकता हूँ। तो मुझे ये सब बताना पड़ा कि आई वाज सो प्रोन टू लर्निंग ऑलवेज, सो दैट्स द रीजन आई जॉइंड, एंड दिस इज माय, आई थिंक दिस इज माय परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई सेल्फ बेटर। राइट। तो ये सारे चीज मुझे छोटे छोटे चीज जो शुगर पॉइंट्स जैसे होते हैं जिन्हें मैंने ऐड किए, सो ऑल दिस हेल्प मी। या सो उस टाइम पे उन्होंने पूछा टेल अबाउट योरसेल्फ, तुम्हारे कोई आईडी प्रूफ के बारे में बताओ पूछा, और व्हाई दिस जॉब शिफ्ट। मेन क्वेश्चन आई थिंक जो भी हो, जो प्रेजेंटली कैंडिडेट हैं सब, इनकी अभी की जो वैकेंसीज है वो उन लोग सिर्फ जिनके पास 2 साल या मिनिमम 1.5 इयर्स की एक्सपीरियंस है, उन्हीं को सिर्फ उन लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। तो उसके कारण वो पूछेंगे कि व्हाई यू आर चेंजिंग योर जॉब, सो यू शुड बी रेडी अबाउट दैट। बस यही एक चीज थी जो मैंने आपकी वीडियो से हेल्प लेके सही तरह से जवाब दी। या परफेक्ट। ओके, तो आफ्टर फर्स्ट राउंड कब मालूम पड़ा आपको कि कॉल फॉर सेकंड राउंड, कब उन्होंने मेल किया आपको इसके बारे में? सर जस्ट हाफ एन आवर में मुझे मेल आ गया सर अच्छा, कि आपका सेकंड राउंड आने वाला है। आई थिंक सेकंड राउंड के बाद ही थोड़ा टाइम लगा था। फर्स्ट राउंड तो सिर्फ 2:45 PM आई थिंक दोपहर के 2:30 उस टाइम पे आया था। सिर्फ एक 10 मिनट का कॉल था वो। उसके बाद जो सेकंड राउंड हुआ था वो आई थिंक 4:15 टू 4:30 समथिंग था। ठीक है। सो व्हाट वाज और द क्वेश्चन उसके आस्क्ड बाद इन दैट राउंड? सेकंड राउंड में क्या क्वेश्चन पूछे गए? सर उसमें भी सिमिलर क्वेश्चंस ही थे सर, कि टेल अबाउट योरसेल्फ, बेसिक बेसिक बेसिक। और जैसे आपको ई लर्निंग के बारे में पता है क्या, स्कूल लर्निंग क्या होता है, टीचर का रोल क्या है, मेंटर का रोल क्या है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके वीडियोस में और आपके मॉक इंटरव्यूज में देखने से अगर उसी में पता चल जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई थिंक मेजरली आई विल से, जी सर, आपके वीडियोस में से सबका सब कवर्ड है। तो या यही क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी, आई मीन द सेकंड इंटरव्यू एंड थर्ड इंटरव्यू आपके इंटरव्यू से सेम ही था, तो इसमें कुछ अलग नहीं था। ओके, गुड। ओके, फिर थर्ड राउंड में क्या हुआ आपका? सेकंड खत्म हुआ, फिर थर्ड के लिए सर थर्ड राउंड थोड़ा हार्ड होता है। थर्ड राउंड आपको शाम में था सर, आई थिंक वो एक 6:40 से 7:10 तक का था वो टाइम। जी एक हाफ एन आवर बोल सकते हैं जी, एक 30 मिनट्स का था। इसमें थोड़ा ये एचआर जो होते हैं वो आपसे बहुत आराम से बात करते हैं। आप क्या बोलना चाहते हैं, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, ये सब आप जानना चाहते हैं। और वो आपका रिएक्शन भी देखते हैं कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। आपको एक सिचुएशन दे देंगे, उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब चीजों के वो जानना चाहते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप कैसे बात कर सकते हैं, अगर आपको एक क्रिटिकल सिचुएशन दे दिया जाए तो आप कैसे रिप्लाई करेंगे, ये सब आप जानना चाहते हैं। और उसी तरह इस जॉब के लिए आप सही हैं या नहीं हैं, वो सब भी आपके इस क्राइटेरिया से उन लोग जान सकते हैं। तो ये थोड़ा लॉन्ग होगा, और इसी में आपका एकेडमिक क्वेश्चंस भी डिफरेंट थे। अगर मैं बोलूं तो एकेडमिक क्वेश्चंस ही मुझे कुछ हद तक याद नहीं है, बट इट वाज सिमिलर लाइक आपके वीडियोस में जो स्टूडेंट्स बोलते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लॉ ऑफ इमोशंस क्या होता है, न्यूटन्स के लॉ क्या क्या होते हैं, सो बेसिक नंबर सिस्टम क्या क्या होता है। इट वाज जस्ट बेसिक क्वेश्चंस, ये सब के बारे में पूछा जाया था। जी सर। ठीक है। आपको कोई मेंटरशिप क्वेश्चन याद है जो मेंटर वाले क्वेश्चन पूछते हैं, वो ऐसा कोई क्वेश्चन याद है आपको? सर मेंटर में मतलब बेसिक डिफरेंस बताने पड़ते हैं सर, बेसिक कि मेंटर क्या करता है, मेंटर का रोल क्या होता है। और इसी तरह मैंने एक चीज क्या की थी कि मेरे रेज्यूमे में मैंने मेंशन किया था कि मैंने एकेडमिक काउंसलर का भी जॉब किया है मेरे कॉलेज में, सो इट वाज एन प्लस पॉइंट। लाइक आई वाज मेंशनिंग कि I have did an counseling session for students also for last 2 years when I was working in college. तो उसके तरह से मैंने मेरी जो आंसरिंग थी तो मैंने उसके साथ मिला के मैंने बात की, मैंने बताई कि मैंने ये सब किया है, पोटेंशियल बैरियर्स के बारे में जाना है, उनके साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में जाना है, उसको कैसे सॉल्व करना है, ये सब मैंने जाना है। तो इस सबसे हेल्प मिलती है, और यही चीज यहाँ पे भी मिलेगी। मतलब बच्चों को अगर कोई चीज अच्छा नहीं लग रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो उसके बारे में क्या प्रॉब्लम है, क्यों उन लोगों को पढ़ने का मन नहीं लगता है, ये सब के बारे में
जाना पड़ता है, तो ये सभी ये जॉब में मुझे करना पड़ेगा कह के जी, मैंने जी। बोला एचआर को। तो गुड। या ओके, गुड, ग्रेट। तो गाइस आपने सुना जी सर। प्रसन्न ने जो बोला आपको कि बेसिक चीजें मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो खुद बोल रहे हैं कि 90% क्वेश्चन सिमिलर थे जो हमारे मॉक्स में रहते हैं, ठीक है। सो हूएवर इज प्रिपेयरिंग, आई वुड जस्ट से प्लीज गो थ्रू ऑल द मॉक वीडियोस, बहुत ही हेल्पफुल है और मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आएंगे आपके, ठीक है। तो जिसने वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज गो थ्रू इट, सीखो उससे, लर्न जी करो कुछ चीज, ठीक है। इट्स ओनली फॉर यू, आई ऐड न्यू क्वेश्चंस जस्ट दैट यू कैन क्रैक द इंटरव्यू, आपको कोई डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। Whoever has not seen, please go through the videos, have a look. Definitely, it will help you a lot in clearing the interview. जैसे प्रसन्ना ने बताया कि दोनों राउंड्स में, सेकंड राउंड हो या थर्ड राउंड हो, दोनों में क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर थे, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी उस उन सब चीजों से, ठीक है। एंड वन मोर थिंग गाइस, जो प्रसन्ना ने बोला अभी अपने इंट्रो में कि ये सेकंड टाइम उन्होंने अप्लाई किया था, मतलब फर्स्ट टाइम ही गॉट रिजेक्टेड, बट देन ऑल्सो ही वॉज नॉट लूजिंग द होप। उसने ट्राई किया कि मैं दोबारा अप्लाई करूंगा एंड आई क्लियर द इंटरव्यू, वो उनकी गट फीलिंग थी, एंड दैट इज वाई टुडे ही हैज क्लियर द इंटरव्यू, टुडे ही इज गिविंग द सेशन, बिकॉज उसने वो गट दिखाया, उसने वो गट फीलिंग दिखाई कि नहीं मुझे करना है, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू हु आर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब रोल, अगर रिजेक्शन होता है तो गाइस प्लीज टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, लर्निंग की तरह लो एंड गो बियॉन्ड इट, ट्राई करो, दोबारा अप्लाई करो, अटेम्प्ट करो एंड क्लियर करो इंटरव्यू, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, आराम से क्लियर हो जाएगा। कोई हेल्प चाहिए तो आई एम देयर टू ऑलवेज हेल्प यू। ओके, तो प्रसन्ना आफ्टर गिविंग द इंटरव्यू, लाइक आपने रिजल्ट कब आया आपको, जो आपने बताया था अभी पिछले इंटरव्यूज में? सर, अगले दिन ही आ गया था सर। नेक्स्ट डे आ गया था, आई थिंक जी सर, जी सर, अगले दिन ही ठीक आ है। गया था और जी आपकी ज्वाइनिंग कब से है या बाईजूस में? सर 30 से है सर, इस 30 महीने से। 30 से। ओके, तो जी जी प्रसन्ना एक 30 बहुत से कॉमन क्वेश्चन और भी है कि जो वर्चुअल ऑनबोर्डिंग होती है बाईजूस की, उसमें बेसिकली वो जी क्या सर। करवाते हैं आपसे या क्या होता है उस सेशन में, बिकॉज लोगों को पता नहीं होता उसके बारे में, बिकॉज यू हैव गिवन द सेशन, ओके सो यू कैन जस्ट क्लैरिफाई थिंग्स अबाउट दैट। ओके सर। सर, वर्चुअल ऑनबोर्डिंग में क्या होता है, उसके पहले आपको थोड़े चीज करने पड़ते हैं, मैं वो पहले बताता हूँ, वो क्लियर कर देता हूँ कि हम्म, उन लोग सर्टिफिकेट्स पूछते हैं, जो सर्टिफिकेट्स उनको चाहिए, वो हम्म, डॉक्यूमेंट साइन करने बोलते हैं। वो हम्म, ऑनलाइन में ही डॉक्यू साइन कह के ऐप है, उसमें से हो जाते हैं। तो हम्म, आपको वो पहले कंप्लीट करने पड़ते हैं, उसके हम्म, बाद एचआर आपको उस वर्चुअल ऑनबोर्डिंग में आने देते हैं। उस जूम मीटिंग में आप सब लोगों को आने के बाद आपका अटेंडेंस लिया जाता है और आपके बारे में पूछा जाता है और आपको सबको बताया जाता है कि आप किस रोल के लिए आए हैं। और हम्म, फिर उसके बाद आप बताते हैं कि बायजूस का हिस्ट्री क्या है, बायजूस कैसी हुई थी, कैसे स्टार्ट हुई थी, हम्म, इसके रीजंस क्या है, आपका हम्म, जॉब क्या है, बायजूस में हम्म, क्या-क्या फैसिलिटीज मिलते हैं। हम्म, और इसके बाद इसके बाद उन वो समझाने शुरू करते हैं कि बायजूस में बायजूस का ऐप कैसा काम करता है। मतलब ऐप मीन्स जब आप ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद हम्म, आपको जो पोर्टल्स मिलेंगे, हम्म, लॉगिन पोर्टल जैसे, आपको हम्म, कैसे किसके पास इंटरेक्ट करना है, किसको मैसेज करना है या किसको रिपोर्ट करना है, ये सब हम्म, के बारे में बताया जाएगा। तो एचआर कौन से एचआर के पास आपको मैसेज करना, किसी को किसको मेल करना है और हम्म, आपको कुछ चाहिए। मेनली ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस क्या है, मतलब आपको समझाने के लिए कि आप जॉब ज्वाइन करने के बाद आपको क्या-क्या करना है। कूल, तो परफेक्ट। वो ब्रीफ डिस्कशन होता है, मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन जैसा होता है। एचआर हम्म, इस सब के बारे में बताते हैं कि आपका पेरोल क्या होगा, एम्प्लॉय पोर्टल कैसे यूज कर सकते हैं, ये हम्म, सब एचआर बताएंगे। तो ये सेशन नियर अबाउट 3 आवर्स का होता है। ओह माय गॉड। मेरा तो 9:30 से शुरू होके 11:45 तक हुआ था। आई थिंक 12 o'clock भी हो गया था, या 12 भी हम्म, हो गया हम्म, था। तो हम्म, जी, तो इसी में बीच में फाउंडर भी आते हैं, मिस्टर बायजूस रविंद्रन सर। उनका भी एक वीडियो प्ले होता है 30 मिनट्स का। तो अच्छा। वो भी बताते हैं कि हम लोगों का एम क्या है, हम लोगों का हम्म, एम्बिशन, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारा हम्म, हमारी कंपनी को क्या-क्या चाहिए, ये सब के बारे हम्म, में बताते हैं। और हम परफेक्ट, लोग परफेक्ट। कहाँ हैं, हम कितनी बड़ी रोल है इसमें, ये सब के बारे में बताते हैं। और इसके बीच में आपको बहुत सारे वीडियोस प्ले होते हैं कंपनी की तरफ से कि हम्म, बायजूस की कंपनी क्या है, कहाँ से हम्म, शुरू हुई थी, हम्म, इनको कितने इन्वेस्टमेंट्स आए हैं, कंपनी ने क्या-क्या किया है आज तक। हम्म, ये सब के बारे में आपको बताया जाता है। ठीक है, जी परफेक्ट। सर। तो सर ना तो एक और चीज, लोग मुझसे पूछते हैं लीव्स वगैरह डिस्कस करते हैं क्या वो ऑनबोर्डिंग में, कि कितनी लीव्स मिलने वाली है आपको आगे जाके, या कैसे लीव्स पॉलिसी रहती है बायजूस में, कुछ डिस्कस जी करते हैं जी इस सर, तरह सर से? टोटल पूरी डिस्कशन इसके बारे में, सिर्फ लीव के बारे में होती है। अगर मुझे बताना है तो मेनली लीव के बारे में ही बहुत सारे लोगों ने क्वेरीज की, हम्म, कितने लीव हम्म, मिलते हैं, कितने हम्म, मिलेंगे और कब हम्म, कब लीव ले सकते हैं। तो बेसिकली एचआर ये ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस, मतलब ये जूम कॉल में सिर्फ यही बताते हैं कि
क्या क्या आपको डाउट्स हो, मतलब लीव से मिले हुए या पे से मिले हुए, आपके पे में क्या क्या डिडक्शन होने वाले हैं, आपके जॉब में आपको कब कब लीव मिल सकता है, आपका सीएल कब है, कैजुअल लीव कब है, ईएल कब है, गवर्नमेंट हॉलीडेज कितने हैं, ये सब उन लोग तभी डिटेलिंग से बताते हैं एचआर। उसके बाद और एक चीज है इसमें कि लास्ट आप जब इंटरव्यू मतलब ये जो जूम कॉल खत्म होगा तब आपको एक क्विज जैसा होगा। ये मैं जो जो भी अभी इसके बाद ज्वाइन करने वाले हैं उनको मैं पहले बताता हूँ। ऑनबोर्डिंग के टाइम पे आप लोग अगर आराम से बैठे हैं, कुछ याद नहीं कर रहे हैं या देख रहे नहीं है, या अगर आप उसमें नहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, तो आपको लॉस है कि लास्ट में एचआर आपसे 15 क्वेश्चन पूछेंगे जिनके जवाब आपको देने पड़ेंगे। तो उसमें सारे क्वेश्चंस मिलते हैं कि आपको कौन सी कंपनी से इंश्योरेंस मिलेगा, हेल्थ पॉलिसी क्या है, किस बैंक के साथ आपसे बायजूस की पार्टनरशिप है, बहुत सारी चीजें पूछेंगे। आपको छुट्टी कब कब मिलने वाली है, अगर आप बैंगलोर में काम करने वाला है या इंडोर में काम करने वाला, तो मतलब आपको क्या क्या काम मिलने वाला है, ये सब के बारे में उन लोग पूछते हैं, मतलब बताते हैं। और उसी की तरह 15 क्वेश्चन आते हैं जिसके टाइमिंग होती है। अच्छा, ओके, यू विल हैव जी, टू फिल, मतलब 15 सॉल्व सेकेंड्स के करना अंदर पड़ता है। आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। जी, जी सर, वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसा है, सिर्फ 15 सेकंड्स टाइम मिलेगा और एचआर आपको एक-एक बार क्वेश्चंस बताते जाएँगे और उसी की तरह आपको आंसर करना भी पड़ेगा। तो या परफेक्ट, ओके। सो गाइस, प्रशांत ने बहुत अच्छा एक चीज डिस्क्लोज कर दिया जी आपके सर। सामने। आपको बता दिया पहले से, तो वेरी एक्टिव रहना वर्चुअल ऑनबोर्डिंग में एंड लुक इनटू ऑल द थिंग्स जो बता रहे हैं वो, ताकि यू विल हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक किसी ने बताया नहीं था ये बात, आपको प्रसाद ने पहली बार बताया ये चीज, तो प्लीज फॉलो दिस, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। एंड डू थैंक हिम फॉर दिस, बिकॉज उसने आपको गाइड कर दिया पहले से, बिकॉज ही हैज फेस्ड दिस। उसको किसी ने गाइड नहीं किया था, पर उसने आपको डेफिनेटली गाइड कर दिया इस चीज के लिए, तो डू थैंक हिम लेटर अबाउट दिस। ओके, वेरी गुड प्रसन्ना। तो प्रसन्ना, एक चीज और मुझे पूछनी थी आपसे, जो आपने मॉक इंटरव्यूज यस देखे सर। हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो किस हद तक कितने हेल्पफुल लगे आपको, जो जी, हमारे व्यूअर्स पूछते जी, हैं जी जनरली सर। हमसे, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है उसमें, आप क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? सर मैं कहना चाहूँगा कि मेरे लिए तो बहुत ही ईज़ी हो गया था इंटरव्यू, आपके इंटरव्यूज़ देखने के बाद। अगर मैं कहूँ तो मुझे तो पहले इस जॉब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। एंड इट वाज लाइक एलियन फॉर मी। मुझे तो कुछ नया लग रहा था, मुझे पता ही नहीं था। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पता नहीं था, क्या था, कुछ नहीं मालूम था। तो फर्स्ट इंटरव्यू के टाइम पे इसी के कारण मुझे मतलब रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर इसके बाद मैंने इसके बारे में पढ़ा, सीखा। उसके बाद मैंने यूट्यूब में देखना शुरू करा, तो कैसे आपकी वीडियोस आना शुरू हो गई, तो मैंने उसके बाद एक वीडियोस देखना शुरू करी। तो उसके बाद मुझे पता चला सेम क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, मतलब बाकी स्टूडेंट्स को भी, मगर उनके आंसर देने के तरीके अलग। और उसी तरह मेरा एक एडवाइस जो होगा बच्चों के लिए कि आप जो बोलना चाहते हैं, डरे बिना बोले, एंग्शियस ना हो। आप स्टैमर कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर रुकना नहीं है। बात करते रहिए, बोलते रहिए, आपको जो लग रहा है बोलते रहिए। जी। तो मैंने फर्स्ट इंटरव्यू में यही गलती की थी। और जो सेकंड इंटरव्यू में जाने के पहले आपके वीडियोस के कारण ही मुझे सारे क्वेश्चंस पता चले पहले। लाइक आई वाज फर्स्ट इंटरव्यू अटेंड करते समय मुझे तो क्वेश्चंस के बारे में मुझे लिखना भी नहीं, याद ही नहीं था कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या आंसर्स दिए मैंने, मुझे वो सब कुछ भूल गया। उसके बाद मैंने जब आपके वीडियोस देखे तो उसके बाद मैंने नोट्स लिखना शुरू कर। ओके, इंटरव्यू में क्या करना, इंट्रो में क्या लिखना पड़ता है, फिर डिफरेंस बताने में क्या क्या लिखना पड़ता है, क्यों इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, हाँ मुझे ये क्वेश्चन बताना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, मगर इसमें सिर्फ 4 और 5 क्वेश्चंस जिसे मैंने इंपॉर्टेंट से देखे। जैसे कि बायजूस को क्यों चूज करना चाहते, ये क्वेश्चन एचआर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या करना, क्यों तुम बायजूस ज्वाइन करते हो। तो ये आपके वीडियो से मैंने हेल्प ली। जैसे बायजूस के बारे में टोटल हिस्ट्री मैंने ली, उसके बारे में पढ़ा, ये कहाँ से फाउंड हुआ, इसके कितने एक्विजिशंस हैं, कितनी कंपनियों को इन्होंने लिया। तो बेसिकली ये क्वेश्चन में मैंने एचआर को लाइक आई एम द बेस्ट कैंडिडेट मैंने बता दिया। ओके, कि परफेक्ट। इसकी आपको बायजूस के बारे में जानना है तो मैं पूरा बताता हूँ कि आप कौन से कंपनी को आपने एक्वायर की है अभी के लिए। और मैंने यहाँ तक भी बता दिया कि आप अभी के ये जो कतार का फुटबॉल मैच है, इसके भी आप ही ऑफिशियल स्पॉन्सर है। तो मैंने यहाँ तक लेटेस्ट अपडेट तक बता दिया। तो वो बहुत ही लाइक शी वाज स्माइलिंग, ओके गुड यू नो ओके फाइन, जैसे हाँ। तो उसके बारे में मैंने डिटेलिंग से पूरा पढ़ना शुरू किया कि बायजूस का फ्यूचर स्कूल क्या होता है, बायजूस कहाँ से शुरू हुआ था, बायजूस के फाउंडर ने क्या क्या आइडियोलॉजी के साथ की थी, इसका लर्निंग सिस्टम कैसा है,
इन लोग को कैसे, कौन कौन से एप्स हैं इनके, कौन कौन से अलग अलग प्रोडक्ट है इनके, ये सब जानना पड़ा। ये सब जानने के बाद फिर मैंने बोला, और मेनली मैं कहूंगा कि 3 पॉइंट्स आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एक फाउंडर, और ये इसका और एक पॉइंट कि इसे कितने बच्चे यूज करते हैं, और ये कहीं से भी आपको मिल सकता है। ठीक है, बायजूस कहीं पे भी, इफ यू आर सिटिंग इन सम कॉर्नर ऑफ योर हाउस, एंड देन ऑल्सो यू कैन गेट दैट एजुकेशन। ये एक चीज होता है। और मेनली आपके तो सारे वीडियोस में होते हैं कि गूगल स्टार्स, इसके गूगल प्ले स्टोर में कितने होते हैं, ये सब मैंने कहा। जी जी, आपकी वीडियो से ही ये सारे चीज पूछने की मैंने मतलब अपने आंसर्स में रेडी किया, तो ये सब ही हुआ था। जी गुड, परफेक्ट, ओके। तो गाइस, जो मुझसे पूछते हैं ना कि बेसिक क्वेश्चंस हम क्यों पढ़ें बायजूस के बारे में, कंपनी के बारे में, प्ले स्टोर, रेटिंग्स एंड फाउंडर, को फाउंडर, तो इंपॉर्टेंट होती है ये चीजें, बिकॉज व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग फॉर सम कंपनी, एटलीस्ट यू शुड नो, वो पूछे या ना पूछे आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आप उस कंपनी के लिए अप्लाई करने जा रहे हो। तो व्हेनेवर यू आर गोइंग, बी प्रिपेयर्ड विद बेसिक क्वेश्चंस अबाउट बायजूस, अबाउट द कंपनी, फाउंडर, को फाउंडर, बेसिक एक्विजिशंस जो उन्होंने बताया प्रशांत ने, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि वो आपको हेल्प करे इनडायरेक्टली। ठीक है, बाकी प्रसाद ने बताया आपको कि सारे वीडियोस काफी हेल्पफुल है, तो वट एवर यू वांट टू लर्न, प्लीज गो थ्रू ऑल द वीडियोस। आई हैव क्रिएटेड अ प्लेलिस्ट आल्सो फॉर यू, ताकि आप प्लेलिस्ट में जाके आपको सर्च ना करना पड़े, आप बैक टू बैक वीडियोस देख सको और चीजों को आप जस्टिफाई कर सको, समझ सको इजिली। ठीक है, स्टिल इफ समवन वांट्स अ हेल्प फॉर क्रैकिंग द इंटरव्यू, बिकॉज होता है कि वी वांट टू प्रैक्टिस फर्स्ट ऑफ ऑल, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है हमें, बिकॉज हमने इतने इंटरव्यूज दिए नहीं होते हैं। तो इफ एनी वन ऑफ यू वांट टू प्रैक्टिस एंड वांट टू लर्न समथिंग, देन यू कैन जॉइन द मॉक सेशंस। मॉक बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, एंड यू विल गेट टू लर्न एवरीथिंग। आई विल प्रोवाइड नोट्स आल्सो ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, सो दैट आपका कोई डाउट रह ही ना जाए। तो बिफोर इंटरव्यू सब डाउट क्लियर हो जाए आपके, एंड यू कैन इजीली क्लियर द इंटरव्यू। ठीक है, so for joining mock sessions you have 3 basic methods to join mock sessions. The first one is WhatsApp number. You can just WhatsApp me on my number and I'll contact you again for mock sessions, and you will help you, I'll help you out regarding joining mock sessions. ठीक है, second one is Telegram channel. Telegram channel पे जाओ और जाके you can mention you want to attend mock session. Our team will contact you and will give you information regarding mock sessions. And third is simplest, Google form एक मैं लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस फॉर्म को क्लिक करो, उस फॉर्म को फिलअप करो, आवर टीम विल रीच आउट टू यू रिगार्डिंग मॉक सेशंस। ठीक है, तो जो भी आपको हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प फॉर एवरीथिंग। तो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो बेहिचक आप मेरे पास आओ एंड जस्टिफाई करो, मेरे साथ क्वेश्चन पूछ लो मुझसे, ताकि यू गेट क्लैरिटी अबाउट एवरीथिंग। ठीक है, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप आपको काफी हेल्प करेगी ये सारी चीजें। मुझे प्रसन्न ने फीडबैक दिया, प्लीज टेक ऑल द फीडबैक पॉजिटिवली, बिकॉज जो क्वेश्चन उन्होंने बताया है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस ही आते हैं, पैटर्न बिल्कुल सिमिलर ही रहता है। ठीक है, तो डेफिनेटली मेक नोट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, जो आपको काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, प्रसन्ना, लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क वन मोर क्वेश्चन टू यू, कि आपकी तरफ से कोई टिप ऐसी जो आपको लग रहा हो कि लोगों को फॉलो करनी चाहिए, जिनका इंटरव्यू भी क्रैक नहीं हो रहा है या जो कोशिश कर रहे हैं क्रैक करने की, उनको ये टिप फॉलो करनी चाहिए? कोई ऐसी मिस्टेक जो आपने कर दी हो जो उनको नहीं करनी चाहिए, या कोई ऐसी पर्टिकुलर टिप जो पॉजिटिवली उनको हेल्प करे ग्रो करने में? एनीथिंग फ्रॉम योर साइड। सर, पहले तो मैं कहूंगा कि आपको आपकी सारी वीडियोस को पहले देख लें, गुड। क्योंकि उससे ज्यादा से ज्यादा 80 to 90% उनकी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम्म क्वेश्चंस मेनली आपके वीडियोस में से ही आती हैं। मुझे कहना हो तो एचआर आपके वीडियो से ही लेके क्वेश्चन लेते होंगे, ऐसे भी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि और हाँ, मैं कहूंगा कि डरना मत। इफ यू आर मतलब कुछ हद तक थोड़े लोग डर जाते हैं या क्वेश्चंस कैसे रिप्लाई करना पता नहीं करते। मैं कहूंगा कि नहीं पता तो तभी ट्राई करिए बोलने के लिए। जी, राइट। सो इफ यू बिकम एंग्शियस आल्सो, जस्ट ट्राई टू आंसर एंड प्लीज हैव अ स्माइल। हाँ, आप राइट। लोगों को ना ही ऑलवेज लाइक, मैंने एक चीज देखी कि लाइक फर्स्ट इंटरव्यू में मैंने बहुत एक डल तरीके से आंसर की, और सेकंड टाइम पे मैं बहुत चेरिस्मेटिक था कि मुझे स्माइलिंग के साथ ही मैंने एचआर से बात की, तो एचआर वाज आल्सो हैप्पी। एचआर भी आपके साथ हंसते हुए बात करेंगे इफ यू आर गुड। तो या तो वही कहूंगा कि आप पहले तो वीडियोस देख लें, वो आपको पहली तरह 80 to 90% हेल्प कर देंगी। और उसके बाद अगर आपको कुछ हेल्प मतलब और कोई एडवाइस दूं तो मेनली यही होगा कि आप डरे बिना जवाब दें बस, गुड। तो गाइस क्योंकि आई थिंक क्वेश्चंस तो आपके में। गुड। जी सर, जी जी। गो अहेड। कैसे भी सर के वीडियोस देखने से आपको पता चल जाएगी क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। बस आप वो क्वेश्चंस लिख लो, उसके आंसर्स भी आपकी अपनी एक्सपीरियंस की तरह उसे अलग से लिख लो, और उसके बाद उसका प्रैक्टिस करो। राइट। वीडियोस
प्रैक्टिस करो, या सर के मॉक इंटरव्यू भी ट्राई करो। बहुत सर के इंटरव्यू से ही आपको पता चल जाए कि कैसे रिप्लाई करना चाहिए। सर के फीडबैक देखिए, मेनली हेल्प, आई थिंक सर की फीडबैक आपको बहुत तरह से हेल्प करेगी कि आपको कैसे रिप्लाई करना चाहिए, आप क्या क्या करना चाहिए, आपके में क्या खामी है, सब सर बता देंगे। तो मैं कहूंगा कि आप मॉक इंटरव्यू भी ले और इसके बाद थोड़े कॉन्फिडेंस से बात कीजिए जी, डरे बिना बात जी। तो गाइस प्रसन्न ने सारी टिप्स दे दी ऑलमोस्ट आपको, मेरे लिए कुछ बचा नहीं है बोलने को, बिकॉज उसने सब कुछ ही ऐड कर दिया। और जो उन्होंने बोला ना स्माइल वाली बात, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बड़ा टूल होता है आपके लिए। व्हेनेवर यू आंसर ना, एक स्माइल रखो फेस पे हल्की सी, ताकि इंटरव्यूअर कैन फील कि आपका कॉन्फिडेंस उतना है या यू आर इंटरेस्टेड इन गिविंग द आंसर, ठीक है। बाकी तो मॉक सेशंस देखो मेरे यूट्यूब पे, मॉक इंटरव्यू ज्वाइन करो प्रैक्टिस करने के लिए, अपने आप को और बोल्ड करो, मुझसे नोट्स लो, पढ़ो एंड क्रैक द इंटरव्यू। अल्टीमेट गोल है आप इंटरव्यू क्रैक करो एंड गेट इनटू बायजूस, दैट इज माय अल्टीमेट गोल। चाहे कैसे भी करो, वीडियोस देख के करो या मॉक लेके करो, ठीक है। सो गाइस आई विश यू ऑल द बेस्ट विद दिस नोट। इस वीडियो में इतना ही है हमारे लिए, एंड देन वी विल सून मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू कंटेंट, लेटेस्ट कंटेंट जो आपको काफी हेल्प करेगा। I wish you guys all the best. Practice करते रहो, इंटरव्यू निकालते रहो, and thank Prasanna for sparing his time. Again, I am telling, whenever you get some help, please go and thank Prasanna. Okay? So wish you guys all the best from my side. Do well. I'll see you soon in next video. Bye bye. Take care. And I would, okay, sir. I would also like to thanks sir for his help. Like आपकी वीडियोस के कारण ही मुझे सब कुछ मिला, आपकी मेंटरशिप से मिला। मुझे जब जब डाउट था मैंने आपको कॉल किया और आपने रिप्लाई भी किया। So I have to thank sir only for Most getting welcome, me into the Byju's. Yeah. No, most So, welcome, and I feel yeah, really thank you, proud sir. and good when people like you crack the interview by taking my help. I am always there to help anyone, not you. कोई भी होता है, whenever someone calls me, I do try to help whatever I can do from my side. तो कोई भी ऐसा मुझे देख रहा है वीडियोस में भी, someone wants help, मुझे कॉल कर सकते हो, no worries, I'll definitely help you. आप बस क्रैक करो। I get motivation when someone says ना कि आपने इंटरव्यू क्रैक किया मेरे वीडियोस देख के, I get motivation to make more such videos of and to help more of you, जितना मैं कर सकूँ अपने इनसे। So that is the final note from my side. So signing off guys for this video. I'll see you in next video. Take care of yourself. Bye bye. Take care. Guys, I hope आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो don't forget to like the video, share with your friends and subscribe our channel so that आपके लिए हम फ्यूचर में भी ऐसे innovative videos लाते रहे so that you can get help from all these videos. I'll see you soon in next video. Till that time, take care of yourself. Bye bye.